Jai Shardema students. How are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, we are back again with another video of another chapter. In the previous video, we have discussed our chapter number 1, that is locating places. Now today, in this video, we will discuss our second chapter, that is natural resources. But as usual, before starting, we all need to recite the shloka. So be ready for the shloka. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि. ओम शांति शांति शांति. जय शारदेमा एवरीवन. चलिए, let's start. Our next chapter is natural resources. Natural resources, that means the resources that we get from nature. Obviously, जो हमें नेचर से मिलते हैं वो सारी चीज़ें हमारे क्या होंगे? Natural resources, because these are provided to us by nature. Now in this chapter we will discuss about natural resources, classification of natural resources, uses of natural resources, and the last, conservation of natural resources. But first of all, we will discuss what are the natural resources. Natural resources. Natural resources are the resources which are provided us to by nature. Means वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, लैंड, एयर, वाटर, everything, trees, plants, fibers, shrubs, whatever we get from nature, that everything is called natural resources. That soil, rocks, sunlight, minerals, plants, animals, everything that we get from nature, that is not made by the man, that is not made by the human being, is called the natural resources. We use these gifts of nature to meet our daily needs. नेचर की ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें हर रोज़ चाहिए. सी सनलाइट, विदाउट सनलाइट वी कांट सर्वाइव. अगर सन राइज नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? फुल डे नाइट होगी. कैन वी सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट? नो. We need the natural resources every day for our basic needs. अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमें चाहिए वाटर. We can't survive without water. Air. We can't survive without air. So ये सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है वो हमारे लिए बहुत असेंशियल हैं. We can't live without them. For our survival, we need all of them. Okay? Early humans did not know how to use these natural resources. जो हमारे early humans थे ना, पुराने लोग जो सबसे पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, हमारे जो सबसे पहले एंसेस्टर्स थे, they don't know how to use these natural resources. उन्हें नहीं पता था कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह अच्छे से यूज़ करना चाहिए. Whatever they need, they use. But now in this generation, we understand, we realize that we need to use these natural resources in such a way that they can be preserved for our next generation. Otherwise, if we will use them in continuously in a bulk order, then our next generation will not be able to utilize these natural resources. Okay. Gradually, they learned to harness them to make useful things that made their lives easy. See, you have given the meaning of harness, control and make use of any useful natural resources. तो धीरे 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 उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने समझा कि इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करना है और इनके यूज़ से हम अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं. Natural resources become valuable only when we are able to convert them into useful products.
नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए तभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब हम उनको वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वेस्टेज सिर्फ कार्स और ये सब बनाने में उसको वेस्ट कर देंगे, सारी चीज़ों को, रॉक्स और मिनरल्स को सिर्फ हाउसेज या कंस्ट्रक्शन में वेस्ट कर देंगे, सो व्हाट वी विल डू? जब ये सारे ट्रीज़ और ये ट्रीज़ सब ख़त्म हो जाएंगे, हम उनको एज फ्यूल यूज़ कर लेंगे, देन how can we get fruits and vegetables without trees? How can we get the air? Because trees release oxygen. How can we get the oxygen? Who will absorb the carbon dioxide? So इन नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ तभी है, इनकी वैल्यू तभी है जब इनका यूज़ अच्छे से किया जाए, इन अ गुड मैनर, in the best manner they are used, then only they are valuable. Waterfalls are the gifts of nature. Falling water has a great force. We use this force to generate electricity. See, you have given one example of waterfalls. Waterfalls क्या होते हैं? Waterfalls झरने, जो पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है ना, that is called waterfalls. तो waterfalls क्या होते हैं? That is a gift of nature. हमने तो जाके waterfalls नहीं बनाए, वो तो नेचुरली बने हैं। तो जब इन हाई माउंटेन से पानी नीचे गिरता है तो उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और उस फोर्स से टरबाइन को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम वो पानी को टरबाइन रोटेट करने के लिए यूज़ ना करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। पानी तो मूव करेगा ही ना, वाटरफॉल्स हैं तो पानी तो मूव करेगा ही, बट अगर हम टरबाइन को वहाँ पे सेट करके मूव नहीं करते तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो वाटरफॉल का कोई यूज़ ही नहीं होगा, वो सिर्फ देखने के लिए ही होगा। बट वाटरफॉल देखने में जितने अच्छे लगते हैं उनका उतना ही बेटर यूज़ भी होता है। ओके, There are still some resources in the world that are unknown to us or we are unaware of how to harness them. ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अभी भी वर्ल्ड में जिनके बारे में या तो हम जानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारी अर्थ के नीचे क्रस्ट में बहुत कुछ है, मेंटल लेयर में बहुत कुछ है, स्टिल दैट वी डोंट नो। या बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आता, वी यूज़ दैम रफली, हम उन्हें उतना प्रॉपर बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर पाते जितना उनका करना चाहिए। Many countries in the world have not been able to completely use their natural resources. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई हैं, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज दे आर नॉट सेटल्ड। वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है कि इन रिसोर्सेज का परफेक्ट यूज़ कर सके। दैट इज़ वाई these countries have remained economically backward. यही रीज़न है कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली थोड़ी सी बाकी की कंट्रीज से पीछे हैं। On the other hand, they have been spread from environmental damage that often goes hand in hand with the exploitation of natural resources. Because कि ये जो developing countries हैं, backward countries हैं, they don't know how to harness the natural resources, how to use these natural resources in a best way. तो क्या होता है, कभी कभी वो एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज करते हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। नोविंगली वो ऐसा नहीं करते, बट एज बिकॉज कि दे डोंट नो हाउ टू हार्नेस देम, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। See, here you have given one infopable. Infopables are very important in all the chapters. जिस भी चैप्टर में आपको जो भी इन्फोपेबल दिया है, यू मस्ट हैव टू डू दैट। ओके, with the world population of more than 7 billions, the resources like water, oil, natural gas and coal are reducing rapidly. It is about our country.
As we know, we are the second largest populated country in terms of population. We are on second position in the world after China. So इतनी ज़्यादा population की वजह से वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस, कॉयल, ये जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अभी हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. These natural resources can be classified into two types. इन natural resources को दो types में classify कर सकते हैं. First is living resources, that is also called biotic. Second is non-living resources, that is also called abiotic. Natural resources can be divided into two types, living and non-living, that is biotic or abiotic. Living resources regenerate if the conditions are favorable. As the name suggests, living resources means जो जिंदा है resources हैं, जिनमें life है, तो ऐसे resources को regenerate किया जा सकता है if the conditions are favorable. अगर condition उनके favor में है तो ऐसे resources को regenerate किया जा सकता है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट को ग्रो, प्लांट्स, ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं. वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, दे कैन रीबॉर्न. तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं लिविंग रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज. सेकेंड होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज. नॉन लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर, जो हमें अबेंडेंस ऑफ अमाउंट में मिलते हैं. दीज आर इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल दैट मीन्स कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. मीन्स वी हैव दीज रिसोर्सेज इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट. वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि हम उन्हें जैसे जैसे यूज़ करते जा रहे हैं, दे आर नॉट अबाउट टू फिनिश. इसलिए इन्हें इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, बिकॉज लैंड कैन बी रीयूज, वाटर कैन बी रीयूज, एयर कैन बी यूज. तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल, मीन्स जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है. Minerals and fossil fuels such as coal and petroleum are also non-living resources, but they are exhaustible. जैसे पेट्रोलियम है, कोयल है, फ्यूल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, बट ये लिमिटेड हैं. अगर हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो फिनिश हो जाएंगे. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल. जिन्हें एग्जॉस्टिबल, जो कि ख़त्म हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, वो भी कहते हैं. सी, एग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल, दे आर द टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज. वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज के टाइप हैं. इनएग्जॉस्टिबल को आप रिन्यूएबल भी कह सकते हैं और एग्जॉस्टिबल को नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं. ओके, such resources can't be replaced as they take millions of years to form. इन्हें आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, करोड़ों साल. We can't survive for such a long period. So that is why they are also known as non-renewable resources. इसलिए इनको क्या कहते हैं? Non-renewable resources भी कहते हैं. Now come to the next topic, that is uses of natural resources. How we are using these natural resources. हम इन natural resources को कैसे यूज कर रहे हैं? Natural resources are important for the development and growth of industries. किसी भी कंट्री के लिए
किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उस कंट्री की इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, all natural resources are not renewable, so we must use them carefully. अभी हमने पढ़ा कि सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल नहीं है. कुछ तो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? जो कॉयल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, वो नॉन रिन्यूएबल हैं. वी कांट रिन्यू दैम, सो वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली. हमें उन्हें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए. Some natural resources can be used directly by the human beings. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. बट अदर रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड. कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिन्हें यूज़ करने से पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, एक प्रोसेस करना पड़ता है. For example, we use air and water directly, whereas minerals that are found in the form of ores have to be refined into usable state before they are used. जो मिनरल्स होते हैं, जो माइनिंग के ज़रिए निकाले जाते हैं लैंड के नीचे से, तो उन मिनरल्स को वो ऑर्स के रूप में होते हैं. आयरन है, प्लेटिनम है, कॉपर है, टिन है, ये क्या होते हैं? ये ऑर्स के रूप में होते हैं और इनको रिफाइन करके इसको उस फॉर्म में लाना पड़ता है जिस फॉर्म में हम उसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज टेकन आउट ऑफ द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म. जो पेट्रोलियम होता है, जब उसको अर्थ से निकालते हैं ना, ज़मीन के नीचे से, तो वो ब्लैक ब्लैक डार्क सा, एकदम थोड़ा गंदा गंदा सा, ऐसा क्रूड, मतलब बहुत गाढ़ा सा कुछ द्रव्य, लिक्विड होता है. इट इज़ रिफाइंड इनटू वेरियस फॉर्म्स सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीस. इसको अलग अलग चीज़ों में रिफाइन किया जाता है. इस पेट्रोलियम से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, और लुब्रिकेटिंग ग्रीस, ग्रीस होता है ना, जो वॉसल्स या मशीन्स में लगाया जाता है फॉर देयर स्मूथ वर्किंग, दैट ग्रीस. These products are then used in homes and industries. ये इस कन्वर्जन के बाद पेट्रोलियम को इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट करके ये सारी चीज़ें होम्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूज़ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन व्हीकल. जो डीजल और पेट्रोल है उसे व्हीकल्स में एज फ्यूल यूज़ किया जाता है. And LPG and CNG are used in homes and industry. LPG तो liquid petroleum gas that we know for our cooking and all that it is used. तो CNG compressed natural gas. तो LPG और CNG इन दोनों को ही घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. In the 18th century, coal and steam were useful energy sources. अगर हम 18th century की बात करें, right now we are in 21st century. If we talk about 18th century, at that time जो कोयला और steam, भाप, ये दो चीज़ें important energy के source हुआ करते थे. But today, petroleum and CNG are used. आज पेट्रोलियम और CNG को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. Today, demand for natural resources is growing due to the increasing population. As we have already discussed, we are the second highly populated country of the world. तो जितनी ज़्यादा हमारी population है, उतनी ही ज़्यादा natural resources की demand होती है. Thus, scientists are trying to find alternate resources. Alternate resources मतलब ऐसे resources जिन्हें इन resources की जगह यूज़ किया जा सकता है. Such as sun. Sun is the important source of energy. और sun की energy vast होती है. Okay? And we can get that energy during the whole day.
सनराइज से लेके सनसेट तक हमें वो एनर्जी इजीली अवेलेबल होती है दैट कैन बी ट्रैप विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। सन की एनर्जी को सोलर पैनल की हेल्प से ट्रैप किया जा सकता है। ड्यूरिंग द डे टाइम with the help of solar panel, the solar energy can be stored, and during the night time that can be used. So solar energy is the best example for that can be used as the alternative source of energy. Apart from that, we can use water energy, that wind energy. हम ये सारी energies भी use कर सकते हैं। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस। जो डायरेक्ट है सोलर एनर्जी वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है बिकॉज सन डेली राइज होता है। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। दिन के टाइम इसे सोलर पैनल की हेल्प से ट्रैप किया जा सकता है। वेरियस होम अप्लायंसेस कैन बी रन बाय सोलर पावर। बहुत सारे होम अप्लायंसेस भी होते हैं जो सोलर पावर से रन करते हैं, जैसे सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर हीटर। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सोलर एनर्जी से वर्क करते हैं। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी का कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, ये उसका एक और बेनिफिट है। थस इट कैन बी हाईली कॉल्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। इसलिए सोलर एनर्जी को रिसोर्स ऑफ फ्यूचर कहा जाता है बिकॉज कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज सब एंड हो जाएंगे, पर सोलर एनर्जी विल बी देयर ऑलवेज। दैट्स वाई सोलर एनर्जी इज बीइंग कंसीडर एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। Here, one more info pebble is given that many countries have made experimental cars that run on solar energy. बहुत सारी कंट्रीज ने तो एक्सपेरिमेंटल कार्स भी बना ली हैं जो कि सोलर एनर्जी पे रन करती हैं। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, देयर क्लासिफिकेशन, देयर यूजेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए कि हम भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो सेव करके रख सके, प्रिजर्व कर सके। रिच कंट्रीज आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज देन पुअर कंट्रीज। जो रिच कंट्रीज होती हैं वो पुअर कंट्रीज से ज़्यादा इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। Developing countries need to depend more on natural resources for their growth and development. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इन नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया नीड लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री हैं, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उन्हें भी नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। अब जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन्हें भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है, उनको भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही है। The rising demand for various natural resources has made them scarce in these countries. अब बिकॉज की इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, रिच कंट्रीज़ को चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए, पॉपुलेटेड कंट्रीज़ को चाहिए, सभी को चाहिए, तो इनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इस इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो स्कैर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव एंडेंजर्ड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितना ज़्यादा ट्रीज को कट किया जा रहा है, एनिमल्स को किल किया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, वो एंडेंजर्ड हो गई है। मीन दे आर अबाउट टू फिनिश। उनकी कुछ ही स्पीशीज बची हैं। इफ़ दे विल ऑल्सो फिनिश देन वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगी।
जैसे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने कई बार पढ़ा है कि हमारी अर्थ पे कभी डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज एक भी डायनासोर नहीं है, बिकॉज कि डायनासोर्स जो हैं वो पूरी तरह अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरी तरह अर्थ से खत्म हो चुके हैं. लॉट्स ऑफ स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटेंट और आर एंडेंजर्ड. बहुत सारी स्पीशीज तो ऐसी हैं जो या तो एक्सटेंट हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर, या फिर एंडेंजर्ड है, या मीन्स कि खत्म होने वाली है, उनकी बस कुछ ही स्पीशीज या कुछ ही क्वांटिटीज बची हैं. सम स्पीशीज ऑफ monkeys एंड बर्ड्स आर ऑलरेडी एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया. इंडिया से बहुत सारे स्पीशीज मंकीज के और बर्ड्स के एक्सटेंट हो चुके हैं. एंड इवन द डॉल्फिन्स इन रिवर गंगा में जो डॉल्फिन्स हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, और वो भी दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, और दे आर अबाउट टू एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया. वो इंडिया से ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो जाएंगे अगर हम रिवर गंगा को इसी तरह गंदा करते रहे. तो वो उसके अंदर रहने वाली जितनी भी डॉल्फिन्स हैं जो बची हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. The quality of air, water and land resources is degrading due to overuse and misuse. जो एयर है, वाटर है, लैंड है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, मतलब कम हो रही है, गिर रही है. किस वजह से? ओवर यूज और मिस यूज, ज़्यादा यूज और गलत यूज की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेसेस एंड इन वाटर बॉडीज. हम क्या करते हैं, जो भी गार्बेज होता है ना, वो कहीं भी खुले में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं. तो इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूट होती है, सॉइल पॉल्यूट होती है, वाटर पॉल्यूट होता है. और यही पॉल्यूटेड वाटर, एयर, सॉइल एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और इवन ह्यूमंस के लिए भी. सो ऑल लिविंग बींग्स के लिए इट इज वेरी हार्मफुल. Our future depends upon our ability to maintain and preserve our natural resources and exploit them in such a manner so as to cause minimum damage to the environment. अब हमारा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? Our future depends upon our ability, हमारी एबिलिटी पर. कौन सी एबिलिटी? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व, की नेचुरल रिसोर्सेज का को संभालना, उसे प्रिजर्व करना, एंड एक्सप्लॉइट दैम, और उन्हें इस तरह यूज करना इन सच ए मैनर सो एज टू कॉज मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट, और उन्हें इस तरह यूज करना कि एनवायरमेंट को सबसे कम हानि हो. दैट मीन्स हमारे फ्यूचर के लिए, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें नाउ दिस इज द टाइम to realize, to understand that we need these natural resources. Not only we, our next generations will also need these natural resources. और अगर हम उन्हें इसी तरह यूज करते रहेंगे, then our next generation will not be able to get them. So आज ही हमें समझना होगा, we need to understand, we need to use them in such a manner that we also use them and we can preserve them for our next generation. Okay, therefore it is important that we use our natural resources carefully and wisely. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली और वाइजली यूज़ करें, ध्यान से यूज़ करें, सोच समझ के यूज़ करें. It is our responsibility to provide our future generation with an abundance of quality natural resources. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें. ऐसा नहीं कि आज हम उसका ओवर यूज़ करें, मिस यूज़ करें, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं. जैसे आज हमें पता है वाटर की स्कैरसिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के ऊपर पानी नहीं है. पानी है, बट साफ पानी नहीं है. पानी तो अर्थ पे बहुत है. 5 बिग ओशियंस आर देयर, तो वो सारे ओशियंस में पानी है, बट दैट इज सॉल्टी वाटर, वो खारा पानी है, दैट कांट बी यूज्ड. उसे पोटेबल वाटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा
लेंथी और एक्सपेंसिव होता है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं वाटर की स्कैरसिटी है। वाटर की स्कैरसिटी होने का मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, बट साफ पानी नहीं है। गंदा पानी तो बहुत है, बट वी कांट यूज दैट, हम उसे यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई एज अ ह्यूमन बीइंग, as the present generation, it is our responsibility to utilize these natural resources in such a way कि हम भी आसानी से यूज कर सकें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उसे प्रिजर्व कर सकें। ओके okay students, now we have complete the chapter, so we will again meet in the next chapter. Till then, bye.